Okay, so we use the differential equation, students, that is d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. Using differential equation, students, we got the velocity of the particle. Okay, also I got the acceleration of the particle we consider, and sorry, we got the displacement we consider and the velocity. Both of these particular expressions we had got it. Okay, now we move further ahead, how to plot graph, students. Okay, so just I'll put forward both these particular expressions, students. If in case one asks you, can you give the expression for place function and time function, students? So your place function we consider is x can be represented in terms of plus or minus a. That is, displacement of the particle is always measured from mean position, students. Do keep this in mind. Velocity is equal to omega. Sorry, velocity is equal to plus or minus omega under root a square minus x square, students. That's a formula for velocity we consider. Your acceleration will be equal to negative omega square into x, students. Now, when you speak about with respect to expression with respect to time, students, so how do you go about with it? Then you have your displacement as a function of time. X is equal to a sine omega t, students. We can consider your initial phase. I can consider epoch. I'll consider will be phi. Velocity, I can differentiate this we consider as, so it will be a omega cos omega t plus v. And acceleration, I can write on, students, as differentiating this will be minus a omega square sine omega t plus v. Students, are these expressions clear to all of you? Sir, from x equal plus or minus a, how did we get b? Pardon? Sir, from x equal plus or minus a, Hmm. then from there, how do we get the b equal plus or minus omega? Who told that from here you are getting this? No, my dear, you're using your differential equations to get all these expressions. ये तो सिर्फ मैंने displacement can be written as a, this is a, these are all place functions, students. हमने differential equation लेके हम लोग ने प्रूव किया था ना, प्लस माइनस ओमेगा. हमने ये थोड़ी यूज किया था. Okay, yes. Are you getting it? We didn't use that. This is simply I'm saying it that the particle can have a displacement of plus or minus a. That means this is actually all our place functions. This is displacement simply in terms of plus or minus a. This is velocity at different positions of place we consider. This is acceleration at different positions we consider. Same thing, displacement with respect to time, velocity with respect to time, acceleration with respect to time. Yes. क्या ये clear हुआ, students? Clear? Students, is it clear to all of you all? Yes, sir. Yes, sir. Now listen carefully, students. Now, when you speak about for simple harmonic motion, students, please do keep in mind about the expression, students. When you speak about for simple harmonic motion, students, let us say that the particle is oscillating between two extreme positions. Okay, so I'll try to go for two extreme positions, students. Okay, now suppose if I take this as my mean position, x is equal to 0, that's mean. X is equal to plus a, students, and x is equal to minus a. This is positive extreme. This is negative extreme. The distance between the two extreme positions, students, is called as the path length, and that is twice amplitude. Now, students, to keep in mind, let us understand first of all how exactly we consider about the path. Yes, so it's such a only. Students, if you recollect, I had told you very clearly, अगर मैं बोलूं one oscillation, students, one oscillation का मतलब क्या है? One oscillation can be considered as one wave. Students, one oscillation is one wave, one cycle, one rotation. ये सब ध्यान में रखना, students. One ripple. Agreed? Yes, These sir.
consider. Yeah, yani I can also put forward in terms of one crest and one trough, or one rarefaction and one compression. This is also students should keep in mind. So students, ध्यान से सुना, जब भी मैं one oscillation बोलूं तो can I consider one oscillation as one wave? Why not? Can I consider one oscillation as one cycle? Yes, I can consider that. And since the time taken remains constant, the motion is periodic. Therefore, students have made it very clear that is oscillatory motions are periodic, but periodic motions are not necessarily oscillatory. अगर तुम्हें ध्यान से, अगर तुम्हें पता हो, initially I made it very clear, students. That is, oscillatory motions are certainly periodic, but periodic motions are not necessarily oscillatory. Sir, Yes. sir, I actually got disconnected. So can you repeat what you told like in the last 1 minute? My dear, I was just trying to give you about, I gave you these three expressions. I gave the three expressions, that is, place functions and time functions for particle performing SHM students. And please, and this I made it very clear, students. यानी ये जो x, v और a है, simply implies about displacement, velocity and acceleration of particle. ये ध्यान से सुनना. Last lecture में मैंने clearly बताया था कि जब भी तुम्हें x, v और a मिलता है स्टूडेंट, सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल. लेकिन अगर मैं यूज करता हूं फार्मूला v इज इक्वल टू f लैम्डा स्टूडेंट्स, तो दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अ वेव, नॉट अ पार्टिकल. एंड स्टूडेंट्स मेक इट वेरी क्लियर, डिस्टिंक्ट वेरी क्लियरली कि वेव वेलोसिटी का मतलब क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब क्या है. प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल, ये ध्यान में रखना. वेलोसिटी ऑफ वेव, ध्यान से सुनना, velocity of a wave remains constant in a given medium. अगर तुम मीडियम चेंज करते हो, अगर तुम मीडियम चेंज करते हो तो वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ गिवन मीडियम ऑल द टाइम रिमेन्स कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज हो सकता है. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में हमेशा इनवर्स वेरिएशन होता है. फ्रीक्वेंसी इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड students. And wavelength we consider as a distance covered in periodic time. तो ये तुम्हें वेव वेलोसिटी के बारे में ध्यान में रखना जरूरी है. अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव कंसीडरिंग नंबर ऑफ वेव्स एंड द वेवलेंथ, तो स्टूडेंट्स distance covered is always equal to number of waves into wavelength. स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये मैथमेटिकल रिलेशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव, हेलो, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव, ये क्या है? इट्स अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल. ये क्या है? Distance covered by a particle, which is a time function. This is place at different distances we consider. लेकिन ये क्या है? Distance covered by a wave, n times lambda. Now see, do you see a wave? क्या तुम इसको wave बोल सकते हो? हाँ, ये wave है. अभी देखो, अगर सपोज वही ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर ये वेव फॉर्म को मैं और आगे ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे बताओ what is the distance covered? तो you will count the number of waves ना. Students, count the number of waves. One wave, two wave, three waves, 3.5 waves. How many waves are there? Into the wavelength. Into the wavelength. So 3 to the 6 and 1, 7 by 2 lambda. That's the distance covered. And this can be either in meter or centimeter or millimeter. क्या ये clear हुआ students? Students clear हुआ? Distance covered by a wave का मतलब क्या है? Number of waves into wavelength. अगर suppose मैंने एक wave लिया, तो distance covered will be equal to wavelength. ये जो horizontal distance है ना students, that's the distance covered by the wave. क्योंकि पार्टिकल क्या करता है स्टूडेंट्स, पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट करता है, पार्टिकल अपने जगह पे ही ऑसिलेट करता है. ये जो पार्टिकल है, इट जस्ट ऑसिलेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन. लेकिन जो वेव है वो आगे की तरफ जाता है. यानी अगर वेव तुमने आगे की तरफ भेज दिया, वेव या एनर्जी को आगे की तरफ भेज दिया, and the particle is oscillating about its own axis we consider perpendicular, such waves are called to be transverse. तो ये ट्रांसवर्स वेव के बारे में है. तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, v इक्वल टू f लैम्डा किसके लिए होता है? वेव वेलोसिटी. एग्रीड? डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, नंबर ऑफ वेव्स इनटू वेवलेंथ. Now let us move further, students. So I was trying to speak about
What exactly a wave I'll consider? A wave I can consider to be as what? One wave corresponds to one cycle, corresponds to one rotation, corresponds to one revolution, one ripple we consider. Agreed? Now please pay attention. If I say one oscillation, so can I speak about, I can make a particle to start from here. The particle move to the extreme, come back to the mean, go to the negative extreme, and then come back to the here. This is called as one oscillation, students. अगर सपोज कोई पार्टिकल मीन से शुरू होता है स्टूडेंट्स, तो उसका इनिशियल फेज क्या होगा? प्लीज पे अटेंशन. Initial phase. Students, what exactly mean by the term phase? कोई बता सकता है? Initial phase का दूसरा नाम है epoch, which all the time remains constant. What is phase? Anybody can tell me what exactly phase means? So what will you say? Students, phase actually speaks about what, you know? Phase speaks about state of oscillation, that is vibration of a particle. I repeat, phase always students क्या दिखाता है? State of oscillation, that is vibration of a particle, that is called phase of a particle. I repeat students, phase always speaks about state of oscillation or state of vibration of a particle. Please अभी हम इसको ध्यान से समझेंगे. Please pay attention over here. सपोज अगर पार्टिकल सपोज मैंने एक पार्टिकल लिया है, एक बॉब लिया है जो मैंने सस्पेंड किया विद अ थ्रेड. स्टूडेंट्स हैव टेकन अ बॉब एंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड. अगर मैं पार्टिकल को मीन से ऑसिलेट कराता हूँ स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन से ऑसिलेट करता हूँ, यानी यहीं से मैं उसको पुश करता हूँ, यहीं से मैं फ्लिक करता हूँ, तो क्या मैंने उस बॉब को डिस्प्लेस किया है? हैव आई डिस्प्लेस्ड द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन? नो. तो उसका इनिशियल फेज क्या होगा? उसका इनिशियल फेज क्या होगा? तो स्टूडेंट्स उसका इनिशियल फेज 0 होगा. यानी कि पार्टिकल कहां से शुरू होता है? मीन पोजीशन. यानी किसी पार्टिकल का इनिशियल फेज, ध्यान से सुनना, किसी पार्टिकल का इनिशियल फेज अगर 0 है, that means particle always starts from which position? Mean position. यानी बॉब को अलग अलग तरीके से वाइब्रेट कर सकते हो ना. अगर सपोज 3 स्टूडेंट्स को सारे को मैंने बॉब दे दिया विद अ थ्रेड सस्पेंडेड, तो पहले स्टूडेंट ने क्या किया? सेंटर से वाइब्रेट करना शुरू कर दिया. दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने बॉब को लिया और बॉब को डिस्प्लेस किया. प्लीज पे अटेंशन टू द वे आई एम प्रेजेंटिंग इट. बॉब को डिस्प्लेस किया कहां पे? एट एन एंगल ऑफ पाई बाय 2. मीन से 90 डिग्रीज पे लिया, फिर रिलीज किया. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? तो ये पार्टिकल का ये इनिशियल फेज हुआ. हाउ मच इज द इनिशियल फेज? पाई बाय 2. यानी अगर पार्टिकल को तुमने पॉजिटिव एक्सट्रीम से ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, तो उसका इनिशियल फेज होगा पाई बाय 2 सर्कुलर या पाई बाय 2 रेडियन. स्टूडेंट्स, क्या पता चल रहा है फेज का मतलब क्या? फेज का मतलब क्या? फेज का सिंपल, अगर किसी ने भी, कोई भी टीचर ने, किसी स्टूडेंट ने तुम्हें पूछा फेज का मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आंसर विल बी? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन और स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल. नाउ द थर्ड स्टूडेंट, अगर थर्ड स्टूडेंट को बोलोगे, वो बोलेगा कि सर मुझे ना ही मीन से ऑसिलेट कराना है, मुझे ना ही पॉजिटिव, मुझे यहां से ऑसिलेट करना है. तो करना, किसने मना किया? ही इज टेकिंग इट फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम स्टूडेंट्स. दैट मींस व्हाट एग्जैक्टली इनिशियल फेज? क्या होगा इनिशियल फेज? तो तुम बोलोगे ये 0 है. स्टूडेंट्स, ये 0 है, ये पाई बाय 2 होगा, ये पाई होगा, ये कितना होगा? 3 पाई बाय 2. And then again coming back to what? Again coming back to pi. So can I say this becomes entire one oscillation? यानी अगर तुम नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू करोगे तो व्हाट इज द इनिशियल फेज? इनिशियल फेज इज 3 पाई बाय 2 रेडियंस और सर्कल. यानी फेज क्या बताता है? फेज, इनिशियल फेज का दूसरा नाम क्या मैंने लिखा है? एपोक.
वो क्या बताता है? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन और स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इसी चीज को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि ये भी एक ऑसिलेशन है, ये भी एक ऑसिलेशन है, ये भी तो एक ऑसिलेशन है, क्योंकि वन ऑसिलेशन कैन बी करस्पॉन्डिंग टू वन वेव। अभी ध्यान से सुनना, सपोज अगर मैंने पार्टिकल को मीन से शुरू किया तो देखो इसका इनिशियल फेज क्या है? 0। तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल यहां से किस तरफ जा रहा है? ये पार्टिकल यहां से किस तरफ जाएगा? तो कोई भी शुरू प्लस एक ही है। हाँ, यानी वो प्लस ए की तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स, वो प्लस ए की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, ये फेज का मतलब बता रहा हूं मैं अभी भी, वो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। अच्छा, उसी टाइम पे मैंने तुम्हें पूछा स्टूडेंट्स, उसी टाइम पे मैंने पूछा स्टूडेंट्स, वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जब ये पार्टिकल का इनिशियल फेज 0 है और वो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड तक पहुंच गया है, यानी यहां पे पहुंच गया है, तो क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव? ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव। तो स्टूडेंट बोलेगा सर, ए वेव बाई आपने बोला था, वेव 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 आपने बोला था हॉरिजॉन्टली जाता है, ये वन वेव है। जब भी पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे चला जाएगा, तो क्या ये डिस्टेंस को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? अरे हाँ सर, 4 पार्ट यस में डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये तो पूरा लैम्बडा था, ये तो पूरा लैम्बडा था। यानी जब भी पार्टिकल इनिशियल फेज 0 है, वो अगर प्लस ए पे चला गया, तो उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होगा लैम्बडा बाय 4। यानी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, जब भी पार्टिकल 0 से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे चला गया, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव? लैम्बडा बाय 4, x इज इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? देखो उसी इंस्टेंट के ऊपर व्हाट इज द वेव, ये वेव का डिस्टेंस हुआ, ये वेव का डिस्टेंस हुआ अलोंग एक्स एक्सिस। ना सपोज अगर मैंने बोला कि अभी चलो पार्टिकल इस तरफ आ गया पॉजिटिव एक्सट्रीम, मुझे बताओ अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आ गया तो उसका फेस कितना है? तुम बोलोगे सर π/2। एग्रीड? हाँ स्टूडेंट्स, अगर पार्टिकल यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे तो उसका फेस कितना होगा? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे तो उसका फेस कितना है? π/2। फेस क्या दिखाता है? तो डेफिनेशन रीड करो, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल। यानी स्टूडेंट, फेज ये बताता है कि उस इंस्टेंट पे पार्टिकल किस तरफ जाने वाला है, कितना टाइम लगेगा उस पार्टिकल को उस तरफ जाने के लिए, उसी टाइम पे वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये सारी चीजें फेज बताता है। आई रिपीट, अगर कोई पार्टिकल का फेज तुम्हें देता है, फेज है क्या? एंगल। फेज इज सिंपली एन एंगल मेजर इन रेडियंस। तो अगर कोई पार्टिकल का फेज बताता है तो तुम क्या बताते हो? तुमने पार्टिकल का उस इंस्टेंट पे उसका पोजीशन बताता है। और देखो मैंने फेज का पार्टिकल π/2 ले लिया, π/2 का मतलब क्या हुआ सर? पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम है। हाँ सर ये तो फेज है, वो तो पॉजिटिव एक्सट्रीम है। हाँ सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है π/2 पॉजिटिव एक्सट्रीम है। अभी यहाँ से पार्टिकल किस तरफ जाएगा? तो तुम यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देखो सर, यहाँ से तो पार्टिकल होते हुए वापस अपने मेन पे ही तो जा रहा है, वापस अपने मेन की तरफ ही तो जाएगा। हाँ सर यहाँ पे भी देखोगे तो पार्टिकल अपने मेन की तरफ ही जाएगा। अगर वो वापस अपने मेन की तरफ जाएगा तो कितना वेव हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर जितना आया था उतना वापस जाएगा, जितना λ/4 आया था उतना कहना से λ/4 वापस जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम मीन λ/2 हो जाएगा। अगर मैं यहां से शुरू करूं और यहाँ पे आऊं तो कहना है λ/2। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. प्लीज अनलेस एंड अनटिल अगर ये क्लियर नहीं होगा, सारे प्रॉब्लम्स गलत जाने वाला है। अगर कुछ भी पूछना है उसके बारे में तो प्लीज आस्क राइट नाउ Sir, rather than taking the tensions back. Yes. so can you explain how the phase difference in at plus is π/2c? π/2 circular. The reason is why the particle is reached to positive extreme. If I now okay, चलो ये सर्कल है। सपोज अगर मैंने बोला पार्टिकल, ध्यान से सुना, कहने से वन ऑसिलेशन इज वन वेव। एग्रीड? Yes, ये तो sir. बता, इज इट इक्वल टू वन साइकिल आल्सो? हाँ या ना? Yes, sir. लेट अस से द पार्टिकल इज इनिशियली एट मीन पोजीशन। चलो पार्टिकल यहाँ पे ये मीन पोजीशन पर, एग्रीड?
Now suppose if I say when the particle reaches a positive extreme, suppose ये प्लस है, तो कहने से पार्टिकल यहाँ पे आ गया, देखो ना, what is the angle traced? मीन से कितना गया? 190 डिग्री। स्टूडेंट्स हुआ कि नहीं 90 डिग्री? Yes, sir. वही तो कंसेप्ट है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है, एक ऑसिलेशन का मतलब एक वेव, एक वेव का मतलब एक साइकिल, एक साइकिल का मतलब एक रोटेशन, एक रोटेशन का मतलब एक रिपल भी हो सकता है, एक रिपल यानी वन क्रेस्ट वन ट्रफ भी हो सकता है, वन रेरिफैक्शन वन कंप्रेशन भी हो सकता है। वापस वही पार्टिकल जब मीन पे आता है, तो देखो यही पार्टिकल को सपोज मैं मीन पे ले लेता हूं, तो स्टूडेंट्स क्या तुम बता सकते हो व्हाट एग्जैक्टली द टोटल फेज पाई आ जाएगा? देखो ना मीन पे आ गया। उसी टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ सेंटर से, ये कितना होगा लैम्बडा बाई 2। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अभी क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एग्रीड? Yes, sir. All of y'all, all the students who are into this particular group, please, all of them. Yes, sir. Ujjwal, getting it? Aditi, Kshitij, Ayush, Deepak, Harsh, Mitanshu. What about you, Kunj, Om Shinde? समझ में आ रहा है कुंज, ओम शिंदे? Yes, sir. ऋषि, what about you, ऋषि, you, Ronil, Ruksar? So Yes, what is sir. that lambda Yes, by sir. 2? Lambda by 2 is a wavelength. The wave, the length associated for a wave to cover horizontal distance. That's lambda by 2. One complete wave is lambda ना, ये पूरा lambda है ना Okay, horizontal yes, sir. distance. तो उसका आधा आधा कवर किया है। यानी ध्यान से सुनना, जब भी पार्टिकल मेन पोजीशन से शुरू करेगा तो इनिशियल फेज जीरो है स्टूडेंट्स, है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो उस टाइम पे उसका वेव का डिस्टेंस कितना कवर होगा, लैम्बडा बाय 4 होगा। अगर सपोज वो पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम होते हुए वापस मीन पे आया तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, लैम्बडा बाय 2। अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे स्टूडेंट्स व्हाट एग्जैक्टली हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये कितना होगा सर? ये होगा 3 लैम्बडा, सॉरी ये होगा डिस्टेंस x इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 एंड वापस इफ इट कम्स बैक टू मीन x इज इक्वल टू लैम्बडा। Friends, are you getting it? This is also considered to be one wave. Yani 0, lambda by 4, lambda by 2, 3 lambda by 4, and this is lambda. Students, have you understood the concept of phase, which is measured in radians or circular, students? Phase simply speaks about state of oscillation or state of vibration of a particle at a particular instant. पार्टिकल किस तरफ जाने वाला है, कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को उस तरफ जाने के लिए, उसी टाइम पे व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, ये सब कुछ कौन बताता है? PHASE, PHASE, फेज, रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल फी, PHI। तुम फी भी लिख सकते हो, इसको अल्फा भी ले सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो। ये सब मैंने असाइन किया है विद अ वेरी। Agreed, students? इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Can I erase this part? No, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकोगे। और ये पूरा फॉर्मूलाज में एक लिस्ट दे रहा हूँ, ये फॉर्मूलाज का लिस्ट हो जाएगा, इसको पूरा एक पेज पे, और ये जो डेफिनेशन है सेपरेट साइड पे बताओ। ये पूरा एक फॉर्मूलाज हार है स्टूडेंट्स सारे। यानी पहले मैंने फेज दिया है, मैंने डिस्टेंस दिया, अभी मैं टाइम के बारे में बताऊं। So, sir, when it is released from mean and it goes to the extreme and comes back to mean, then the phase will be pi, right? यस, व्हाट इज द चेंज इन फेज? अगर किसी ने पूछा तो तुमने क्या बोला? मीन से शुरू किया, फिर एक्सट्रीम गया, और वही पॉजिटिव एक्सट्रीम अगर मैं वापस मीन पे आया तो चेंज इन फेज तो हुआ फाइनल इज पाई, इनिशियल इज 0, व्हाट इज पाई माइनस 0? पाई, दैट इज चेंज इन फेज इज पाई। Okay, yes, sir. And what is pi? What exactly pi speaks about? कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, देखो ना मीन पोजीशन पे है। अभी जैसे पार्टिकल यहाँ पे आएगा
तो तुम बोलेगा पार्टिकल किस तरफ जा रहा है सर, इसके बाद में तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा ना, नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव ही जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे ही जाएगा। तो नेगेटिव एक्सट्रीम जाने के लिए उस टाइम पे वेव कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो तुम्हारा आंसर होगा λ/4। ये देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज 3 λ/4 माइनस λ/2, λ/4. कितना होगा 1/4। एग्रीड? Yes, sir. कैन आई erase स्टूडेंट्स? No, sir. 1 minute. Sir, and then so what will be the phase if it starts from mean, completes the oscillation and comes back to mean? If it starts from mean and come back to mean, so what exactly the initial phase and the final phase will be the same, we consider. Coming back to mean position we consider. So what is the total phase difference I'll consider? अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से शुरू करोगे तो वापस यहाँ पे आएगा, तो what is the displacement of the particle? Zero. Displacement is zero. ध्यान से सुनना, distance covered is equal to circumference. Distance covered क्या होगा? 4 times amplitude. Change in phase कितना होगा? 2 pi. Zero. और फाइनली अभी तुम यहाँ पे आओगे, it goes, ये तुम्हारा पाई है, यहाँ पे पाई आएगा और ये 2 पाई हो जाएगा फाइनली। Agreed? Yes, sir. Okay, students, listen carefully. So 1 minute, sir. Now I'm not erasing this part, only this part. Okay, yes. Okay, now students, listen carefully. तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले पोजीशन के बारे में बताया, I get it? Sorry, सबसे पहले मैंने फेज के बारे में बताया, फेज के हिसाब से मैंने पार्टिकल का पोजीशन बताया। Agreed? We consider, and what is the distance covered by the wave? Now let us go for the time. Let us go for the time interval we consider. Now ध्यान से सुनना students, वापस, if a particle starts from mean position, if a particle starts from mean position, x is equal to 0, at that I can consider time instant small t is also equal to 0. यानी स्टूडेंट्स अगर तुम्हारा x 0 है, agreed, initial phase is also 0, initial time interval is also 0. That means the particle is starting from which position? Mean position. Now suppose if I say a particle has reached to positive extreme, phase is pi/2. What about the time taken for the particle to reach from mean to positive extreme? What is the answer? P/4 seconds. है ना? और मैंने बताया भी था अभी, last time I asked you a question. Did I ask you a question, students? What is the time taken to move from mean to midway? पूछा था मैंने? So T/8? No, मैंने पूछा ये question नहीं ना? No, sir. अच्छा, okay, fine. This was a very good. अच्छा, मैंने revision lectures के लिए पूछा था किसका? Okay, fine. So for the timing, I'll tell you about that. From mean to extreme, sir, T/4. Students, T/4. यानी T/4 अगर होगा, ध्यान से सुनना students. अगर तुम्हारा x corresponds to λ/4, agreed, for a wave, okay, the displacement of the particle is equal to plus a. ये wave का position हो गया students, ये particle का position होगा। phase क्या है? pi/2 radians। time कितना होगा? T/4। तो समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है students? It takes T/4 to reach to the positive extreme. Agar suppose from positive extreme again particle comes back to mean position. Again it comes back to mean position. So if the distance covered by the particle will be equal to what? So this is A and this is A, that is 2A. Agreed? From mean to positive extreme coming back. What exactly the distance covered by the wave? λ/2. What is the phase of the particle at that instant? Pi.
What is the time taken? Can you tell me? Sir, ये t by 4 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? Small t will be, कहना है इसे t by 2. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Are you getting it स्टूडेंट्स? यानी वापस ये मीन पोजीशन पे, मीन पे चले गए, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे चले गए, वापस मीन पे आ गए. अभी मीन से कहां पे तरफ जा रहा हूं? नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा हूं. तो अगर मैं मोशन यहां से शुरू करूं, and now if I say it's going towards the negative extreme, so what is the total distance covered by the wave? 3 times the amplitude. What exactly the distance covered by the wave? सर ये होगा 1 lambda by 4, 2 lambda by 4, यहाँ तक आएगा तो 3 lambda by 4 हो जाएगा. ये वेव का डिस्टेंस होगा. What is the phase at that instant? फेज कितना होगा? सर ये 0 होगा, pi by 2 होगा, 3 pi by 2. 3 pi by 2 होगा. एंड फाइनली टाइम कितना होगा? 3t by 4. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? टाइम टेकन. Yes, sir. Now for the last one students, again when it comes back to mean, students, what exactly your capital X will be equal to? 4 times amplitude. Agreed? Yes, What sir. about the distance covered by the wave? Equal to lambda. Lambda. What exactly the phase final will be? Pi. 2 pi circular, 2 pi radians. And what is time? Periodic. Capital T. And अगर मैं यहाँ पे वापस आया तो T will be equal to capital T. यानी स्टूडेंट्स पूरा ऑसिलेशन का जर्नी यू कैन डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ये सारे इक्वल पार्ट्स है स्टूडेंट. दीस आर ऑल इक्वल पार्ट्स. These are all equal parts. This is what a student should keep in mind while solving problems. यानी अभी हमेशा ध्यान में रखना, अगर कभी किसी ने बोला कि पार्टिकल शुरू होता है मीन पोजीशन, तो क्या क्या चीजें याद रखनी है? मीन पोजीशन से शुरू होता है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, इनिशियल पोजीशन इज आल्सो 0, इनिशियल टाइम इज आल्सो 0. अगर मैंने बोला, अगर मैं ध्यान से सुना, अगर मैंने बोला पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से ऑसिलेट कर रहा है स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ से ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, या पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ चला गया, नॉट ऑसिलेटिंग, पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ चला गया, तो what exactly the displacement of the particle we consider is? The distance plus से we consider. Wave का distance कितना है? Lambda by 4 we consider. What about the phase we consider is? Pi by 2. And what exactly time we consider is? T by 4. Students, यहाँ पे ये जो दो चीजें दी है ना स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल का पोजीशन है प्लस से डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल वी कंसीडर वर्टिकल, और ये वेव का डिस्टेंस कवर है. दैट इज, oh sorry, this is 3 lambda by 4. ये 3 lambda by 4 students, 3 lambda by 4. Okay, that's the distance covered by the wave. And finally is lambda. So ऊपर पार्टिकल का और ये वेव का. This is what we consider is state of oscillation or state of vibration. Is this clear? Yes, sir. Now, can anybody give me a relation between time interval, distance in path, and distance in time interval? Time interval, phase interval, and place interval. That's can you get a mathematical relation? Yes, we can get it. The answer सुनो अभी. So listen carefully. For a distance, if it's traveling for a distance, we consider, okay, for a change in distance. Answer now. For a change in distance, if it corresponds to lambda, then what about the change in time interval corresponds to? Periodic. What exactly change in phase corresponds to? 2 pi radian. यानी ये क्या हुआ? ये हुआ distance between two positions. ये क्या हुआ? The time interval between that two positions. ये क्या है? Change in phase of those two particles at that instant. इनके बीच में relation तो ये आराम से मिल जाएगा. So what is the relation? Delta phi
upon 2 pi is equal to delta t upon capital T is equal to delta x upon lambda. And students, this is a very, very important formula. यानी अब ये स्टूडेंट को ये पूरा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेंटली तुम प्रिपेयर करके रखो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करो, आ गया आंसर। देखो रिलेशन मैंने दे दिया, चेंज इन फेज बिटवीन एनी टू पोजीशंस, ध्यान से सुनना, चेंज इन फेज बिटवीन एनी टू पोजीशंस, करस्पॉन्डिंगली व्हाट इज द चेंज इन टाइम, डेल्टा टी। तो अगर चेंज इन पोजीशन बिटवीन एनी टू पोजीशंस इज lambda, then what exactly change in time interval between those two positions will be capital T. What is the change in phase between those two particles? 2 pi. क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Now I'm going to give a suitable example for this. एक हम एग्जाम्पल पकड़ते हैं, क्या मैं ये पार्ट को सिर्फ इरेज करूं? No, sir. No, sir. Okay. Yes, students, can I erase it? The lower half? No, sir. Just 1 minute. I'm writing it. Okay. Please, students, if you're writing it, write down correctly. Huh? Don't write anything incorrect. And if you don't get it, do ask. Don't just blindly copy things. Don't just copy for the sake of copying it. Students, is the audio video fine with y'all? Are you able to see the board very clearly? Yes, sir. Just can I erase, students?
Yes, sir. Okay, students, please pay attention. Suppose अगर मैं कोई वेव फॉर्म तुम्हें देता हूँ, everybody listen carefully, students, please. ये मैंने एक वेव फॉर्म किया, okay? Agreed? Of course, it's an oscillating motion. Particle is oscillating about its mean position, and the wave is propagating in the forward direction. Particle is oscillating along y-axis, wave is moving along x-axis. Now I'm giving you the phase of each particle. Students, अगर ये mean position से तो phase is 0, ये होगा 1 pi by 2. Students, ये होगा 2 pi by 2. ये होगा 3 pi by 2. ये होगा 4 pi. ये होगा 5 pi by 2. ये होगा 6 pi, sorry, 5 pi by 2. ये होगा 6 pi by 2. ये होगा 7 pi by 2. ये होगा 8 pi by 2. ये होगा 9 pi by 2. ये होगा 10 pi by 2. ये होगा 11 pi by 2. ये होगा 12 pi by 2. ये होगा 13 pi by 2. तो समझ में आ रहा है? सबका मैंने फेस दे दिया स्टूडेंट्स, सारों का फेस दे दिया. अभी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना ना. सपोज अगर तुम पहले एक बेसिक्स का पकड़ो, एक छोटा वाला बेसिक हम पकड़ दे स्टूडेंट्स. अगर सपोज मैं बोलूं, लिसन केयरफुली, सपोज अगर मैं बोलूं, if I give you students, if the time interval, listen carefully students, if the time interval between two positions, ध्यान से सुनना, if the time interval between two positions, suppose अगर मैं बोलूं students 3t/4 है, and now if I ask you, can you find out the change in phase between the two particles? Agreed? तो सबसे पहले हम डायग्राम के हिसाब से जाते हैं. एवरीबॉडी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. टाइम इंटरवल यानी ये चेंज इन टाइम है, चेंज इन फेज. टाइम इंटरवल 3t/4 है, तो अगर तुम डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा कंसंट्रेशन होना चाहिए. तुम बोलोगे सर टाइम इंटरवल 3t/4, उसका मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 3t/4 है, यानी शुरू करोगे मीन से आगे यहाँ पे. अच्छा, यानी ये जो टाइम इंटरवल है, यानी ये 0 सेकेंड्स है, ये 3t/4 है. चलो ये पता है. आपने पूछा चेंज इन फेज, तो अगर मैं डायग्राम को देखते बोलूं, ध्यान से सुनना, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 फेज क्या है सर, इसका फेज तो 0 है. एट 3t/4 व्हाट इज द फेज, देखो 3 pi by 2. 3 pi by 2. तो व्हाट इज माय चेंज इन फेज, माय चेंज इन फेज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल 3 pi by 2. यानी ये मुझे आंसर कैसा मिला स्टूडेंट्स, बाय लुकिंग एट द डायग्राम. बट नाउ कैन आई गेट माय आंसर विद यूजिंग दिस रिलेशन? व्हाई Yes, नॉट? sir. डायरेक्टली आ गया. डायरेक्टली देखो, यानी क्वेश्चंस ऐसे देते, एमसीक्यूज ऐसे होंगे, और ये तुम्हारा मैथमेटिकल रिलेशन है. तभी उस टाइम पे तुम्हें डायग्राम को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने करस्पॉन्डेंस में लिया है. फॉर चेंज इन फेज इफ इट्स इक्वल टू लैम्डा, चेंज इन टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी होगा, उसी पे चेंज इन फेज विल बी 2 पाई. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मुझे डेल्टा फी चाहिए, तो डेल्टा फी को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ. क्या दिया है, डेल्टा टी दिया है, तो कौन सा इक्वेशन लूंगा सर, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन साथ में लेते हैं हम, क्योंकि मुझे डेल्टा टी दिया है. व्हाट इज डेल्टा फी सर, इट्स 2 पाई डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी. 2 pi, how much is the change in time interval? 3t/4 upon t. P and t will get cancelled. 2 2s gets cancelled. What's my answer? 3 pi by 2. Are you getting it? Yes, sir. This is how we can get it. अभी सोचो, तुमको टाइम इंटरवल नहीं दिया स्टूडेंट्स, अभी तुम्हें टाइम इंटरवल दिया है ना. सपोज अगर मैंने दिया है, ध्यान से सुनना, मैंने पूछा है चेंज इन प्लेस.
of the particle we consider. Okay, delta x पूछा है students. And if I give you the change in phase, the answer सुनना. Change in phase, if I happen to give you as what? As 3 pi by 2. So what is delta x? क्या तुम आंसर निकाल सकते हो स्टूडेंट्स? हाँ, why not? 3 lambda by 4. आ गया तुम्हारा आंसर, देखो सामने. डेल्टा एक्स को सब्जेक्ट बना दो. इसी को अगर मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज डेल्टा एक्स? What is delta x? So delta x is equal to delta phi into lambda by 2 pi. So delta phi is how much? Into lambda upon 2 pi. Pi and pi gets cancelled. So can you say this is 3 lambda by 4? देखो 3 pi by 2 पे कहाँ पे? 3 pi by 2 पे particle has covered how much? 3 lambda by 4. That's a change in phase. Initial 0, final ये है. क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? हाँ Yes, स्टूडेंट्स. sir. Yes, sir. अभी डांस सुनना. अभी तुम्हारे ये तो मेरे सिंपल वाले एमसीक्यू थे. अभी तुम्हें जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो क्या करेंगे मालूम है? जानबूझ के वो बोलेंगे if the phase difference between two particle is, डांस सुनना. phase of one particle is given to you. Everybody listen carefully. phase of second particle पूछते हैं, इसका पूछेंगे, लेकिन तुम्हें इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल देंगे. They should give you time interval, तो ही पॉसिबल है स्टूडेंट्स. अगर तुम्हें टाइम इंटरवल दिया है, ध्यान से सुनना, तुम्हें टाइम इंटरवल दिया है, तुम्हें फेज डिफरेंस डेल्टा फी तुम्हें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी. एंड व्हाट इज चेंज इन फेज? फाइनल माइनस द इनिशियल. कैन आई गेट 13? कैन आई गेट दिस आंसर? कैन आई गेट दिस आंसर? व्हाई नॉट? I can get the answer anywhere along the position we can consider. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Sir, I didn't understand that one MCQ, the last MCQ. Okay, listen here. क्या मैं इसको इरेज कर दूं अभी? ये पार्ट को इरेज कर दूं? Yes, sir. Okay. Suppose if I give you difference in time interval is 7t by 4. Listen carefully, students. Difference in time interval, students, I'm giving you as terms of 7t by 4. Agreed? Agreed? Yes, My sir. question to you is, find out the phase of a particle. Okay, find out the phase of a particle if initial phase is given to you as 7 pi by 2. So how do you go for it? Formula क्या आएगा तुम्हारा? देखो, change in phase upon 2 pi delta t upon capital T. Students, क्या ये clear हुआ? Sir, is it 7 pi? Coming to it. So what exactly consider will be, students? Change in phase मुझे चाहिए. What exactly? Delta t upon capital T into 2 pi. Students, how much is the change in time interval given to us? 7t by 4 into 2 pi upon t. T and t will get cancelled. 2 2s are. What's my answer for change in phase? 7 pi by 2. क्या ये clear हुआ? ये clear हुआ? Yes, sir. Agreed? I want the phase difference. Phase difference. Final minus initial. Final minus initial we consider is equal to 7 pi by 2. So can I get my initial? देखो, final minus initial change in phase. How much is that? How much is the initial phase given to you as? 7 pi by 2. Can I take it on the other side? What's my answer? 7 pi.
तो समझ में आया? What is my answer? 7 pi. क्या ये क्लियर हुआ? How to find out the phase of the particle? Yes, sir. यानी तुम्हें ऐसे टाइप की क्वेश्चंस पूछेंगे. You can get it. अभी देखो, you can easily prove it also. अगर तुम graphical देखोगे तो you can prove it any time whenever you use this particular mathematical expression. So students, this expression is very important, and this comes in SHM, that is in oscillations also. It comes under wave motion also. When you learn in sound waves, it will be used to a great extent over there also. So students, the relation is change in phase upon 2 pi, change in time interval upon capital T, change in place upon lambda. तो ये पहला जो एक्सप्रेशन मैंने दिया है वो प्लेस के हिसाब से दिया, सॉरी फेज के हिसाब से दिया है. सेकंड एक्सप्रेशन मैंने प्लेस के हिसाब से दिया है, थर्ड मैंने टाइम के हिसाब से दिया है. और इन तीनों के बीच में ये रिलेशन होता है. एग्री स्टूडेंट्स? Yes, sir. Now when you move further to this itself fully, I'm getting it students. Suppose if a particle is starting from mean position students, और तुम extreme की तरफ जाते हो students, मुझे बताओ students, where is the restoring force minimum and restoring force is maximum? ये mean position है students, ये mean position है और ये positive extreme है. मुझे बताओ restoring force minimum कहाँ पे है, restoring force maximum कहाँ पे है? The minimum mean पे है और maximum extreme पे है. Absolutely correct. See, it's only one person is responding. I don't know about the rest of the students. I don't know at all about the rest of the students. 39. Just Josh is replying. What about Sumit? What about you? Sujal, what about you? Aditya, what about you? Hitanshu, Kunj, Om, Sanika, Rishi, Ruksar. अगर आंसर नहीं करोगे स्टूडेंट्स, यू आर टेकिंग द टेंशंस बैक आफ्टर द लेक्चर्स. स्टूडेंट्स यही अब्सॉर्ब करो, इसी चीज को यही अब्सॉर्ब करो, यही कहीं खत्म करो. Now when the particle is starting from mean position, of course restoring force 0 होगा. जैसे जैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, restoring force बढ़ता रहेगा. यानी my restoring force, ध्यान से सुना, my restoring force will be maximum. फॉर्मूला क्या होगा? restoring force का फॉर्मूला क्या होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे? तुम बोलोगे सर माइनस के. Minus kx. समझ में आ रहा? नहीं, kx इंटरमीडिएट पे होगा स्टूडेंट्स. जब भी एक्सट्रीम पे चलेगा x becomes a. Okay, yes, sir. Yeah. ये ध्यान में रखना. रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कहां पे? एक्सट्रीम पे. स्टूडेंट्स अगर मैं इंटरमीडिएट पोजीशन लूंगा, अगर रिस्टोरिंग फोर्स का आंसर होगा माइनस के एक्स. तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. जब एक्सट्रीम पे चला गया तो माइनस के. वैसे अगर पार्टिकल सपोज पार्टिकल अगर वापस इस तरफ है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये भी तो एक्सट्रीम है. यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा मैक्सिमम? बताओ. Ka plus k. समझ में आ रहा है? यानी कहां पे भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे होगा ना स्टूडेंट्स. एनीवेयर इन द इंटरमीडिएट पोजीशन, व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव फोर्स. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. दूसरी बात, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? सर रिस्टोरिंग फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. रिस्टोरिंग तभी जाके तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला ना. रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव kx. Restoring force is mass into acceleration. So acceleration will be equal to what? K by m into x we consider in that case. And acceleration is a second order derivative of displacement with respect to time. तभी जाके मुझे differential equation मिला. Yes, sir. Okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. इसका ग्राफ भी मैंने बताया स्टूडेंट्स. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे होगा? ये पूछा था कि नहीं पूछा था स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैंने तुम्हें पूछा स्टूडेंट्स, प्लॉट द ग्राफ, लिसन केयरफुली, प्लॉट द ग्राफ ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, ओके, वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये माइनस एक्स है, माइनस वाई. चलो प्लॉट द ग्राफ ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. तो मुझे बताओ ग्राफ कैसा होगा? Restoring force and displacement students, how is the graph going to be? Will it be a curve? Will it be a straight line?
Will it be a parabola? Will it be a hyperbola? Will it be an ellipse? Will it be a circle? What exactly? The straight line. Straight line. Straight कौन line से it will be. quadrant में आएगा? कौन से quadrant में आएगा ये straight line? First. First quadrant में आएगा, second Yes. quadrant में आएगा, third या fourth में कहाँ पे आएगा? The second quadrant. अच्छा मुझे ये बताओ, Third, forget about that. First. Very good, Rukhsar. Rukhsar is absolutely correct. Rukhsar अपने आप को unmute करो. Rukhsar मुझे बताओ y axis पे क्या लोगे और x axis पे क्या लोगे? Restoring force versus displacement है तो तुम y axis को किसको लोगे, x axis पे किसको लोगे? सर एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होगा और वाई पे रिस्टोरिंग फोर्स। Yes, sir. Very good. X axis पे displacement होगा और y axis पे restoring force होगा, है ना? जैसे जैसे restoring force और जैसे जैसे displacement बढ़ेगा, restoring force also will increase in that case. Are you getting it? But where exactly the direction of restoring force we consider? Where the direction of restoring force will be opposite, है ना? ओमशी ने फर्स्ट क्वाड्रेंट ने ये देखो ना, restoring force is सर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। हाँ Yes, sir. वही तो रुखसार ने आंसर दिया है, सेकंड और फोर्थ। अभी जाके मैंने रुखसार को करेक्ट बोला, इसलिए अनम्यूट करने के लिए बोला कि उसने अनम्यूट किया नहीं, अभी भी वो गुस्से में ही है। देखो ध्यान से सुनना, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव kx। ध्यान से सुनना, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ाता हूँ, इफ आई एम टेकिंग द पार्टिकल टू द राइट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाता हूँ, स्टूडेंट ध्यान से देखना, मेरा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी मेरा ग्राफ ऐसा आएगा, पहले यहाँ से शुरू होगा। अभी सपोज मैं नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इट विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्टूडेंट्स straight line, yani it will be in second quadrant and fourth quadrant. What is the slope of the graph? What is the slope of the graph? The slope of the graph will be k. Constant. Rate constant, force constant, elastic constant. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. यही तुम्हारा acceleration और displacement का ग्राफ होगा। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। वही तो मैं पूछ रहा था। अभी मैंने क्या पूछा स्टूडेंट्स, जहां पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 है वहां पे रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन क्या होगा? सर एक्सेलरेशन रिस्टोरेशन 0 हो जाएगा। 0. यहाँ पे क्या होगा? सर मैक्सिमम होगा। एग्रीड? यहाँ Yes. पे मैक्सिमम होगा। कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन? बताओ 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 बताओ। अरे स्टूडेंट अब भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो तुम So लोग। minus. हाँ ओमेगा स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग is equal to negative omega square x। ये फॉर्मूला मैंने बताया कि नहीं बताया स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन चेंजिंग विद प्लेस बताया था कि नहीं बताया था? यहाँ पे लिखा था पहले कि नहीं लिखा था? Yes, sir. तो सिंपल हिसाब है। लिखा था। यानी इंटरमीडिएट पोजीशन पे होगा ना स्टूडेंट्स, कहाँ पे भी अगर पार्टिकल इंटरमीडिएट होगा, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम या मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, सब लोग ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना इंटरमीडिएट पोजीशन के लिए। लेकिन जैसे तुम पॉजिटिव एक्सट्रीम पर चले जाओगे, एक्स तुम्हारा ए बन जाएगा। क्यों डरते हो? नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर इनटू ए मैक्सिमम। वही अगर इस तरफ आ गया तो तुम्हारा एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग मैक्सिमम क्या हो जाएगा? एक्स इज माइनस ए Plus omega square. लेकिन इंटरमीडिएट पोजीशन पे होगा तो इंटरमीडिएट पोजीशन पे क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट, whenever you speak about SHM स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, whenever you speak about SHM चाहो तो ये लिख लेना, क्योंकि जब भी मैंने रिवीजन लेक्चर्स में दूसरों के साथ में SHM के प्रॉब्लम्स किए स्टूडेंट्स, वहां पे उनको गलत जा रहा था। यानी अच्छे स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली याद रखते हैं, दे रिमेंबर, दे रिवाइज इट, दे प्रैक्टिस इट। लेकिन ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, whenever you get any problems on SHM students, displacement of particle should be always considered from mean position। समझ में आया स्टूडेंट्स? जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो SHM एंड इफ इन केस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अगर तुम्हें ढूंढना है तो हम या प्रॉब्लम में से निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट हम कहां से एक्चुअली निकालेंगे? फ्रॉम मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैंने बोला है path length is 18 centimeter, agreed?
path length is 18 centimeters, students. And now my question to you is, the particle, the answer is, the particle is at a distance of 1 centimeter from extreme position, from negative extreme. Particle is 1 centimeter from negative extreme. Can you tell me what is the displacement of the particle? क्या बोला मैंने? पाथ लेंथ कितना दिया मैंने? Sir, 18. -8. पाथ लेंथ कितना दिया? 18 दिया. What is amplitude, students? What is amplitude? What is amplitude? What is amplitude? अगर path length 18 है तो what is amplitude? 9. 9. So can I say ये 9 हुआ, students? Please everybody listen carefully. ये 9 हुआ, Yes, sir. ये -9 हुआ. मैंने क्या बोला? The particle is at 1 centimeter from negative extreme. तो यहां से पार्टिकल यहां पे है. ये हुआ मेरा -1 centimeter. We consider that 1 centimeter, 1 centimeter from negative extreme, 1 centimeter. तो डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करोगे? डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करोगे? ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन. एंड एडोफिल तो जस्ट गिव द आंसर. मीन पोजीशन से पार्टिकल का ये डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर. लेकिन क्या वो राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है? राइट हैंड तो माइनस आएगा. राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है ना? सॉरी सर, लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस आएगा. हाँ, तो नाउ कैन आई गेट डिस्प्लेसमेंट इज माइनस. यस सर. क्या ये समझ में आया? दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. यस सर. एग्रीड. सुन, तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अगर ढूंढना हो या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अगर निकालना हो किसी प्रॉब्लम में से, तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन. If a particle is tending to move towards right hand side, it's positive. If it's tending to move towards left hand side, negative. At mean position, displacement is 0. At extreme positive way, negative. So I gave you about phase, initial phase. I gave you about place. I gave you about time. I gave you about restoring force. I gave you about restoring acceleration. Graphical representation of force versus displacement. Same thing will be considered for acceleration versus displacement. At different phase, for different time interval, for different place, we can find out the phase difference, we can find out the time interval, we can find out the path difference also. Or we can find out the phase of a particle. So the relation wouldn't change in phase for 2 pi, delta t upon capital T, delta x upon lambda. क्या ये clear हुआ, students? Yes, sir. Okay. यस सर. Can I erase this entirely now? नो सर, जस्ट No, sir. Wait a minute. इसके नीचे और रिलेशन आने वाला है स्टूडेंट्स, यही डायग्राम के नीचे. यानी इसको एक वर्टिकल पेज के ऊपर लिखो, नीचे खाली रखना स्टूडेंट्स. बाकी जो मैटर, ये ग्राफ वगैरह दूसरे पेज पे बताओ, ये दूसरे पेज पे बताओ, ये इसके साथ में साइड पे लिखोगे तो चलेगा, ये भी फॉर्मूला.
Hey, students, can I erase it? No, sir, 1 minute. Hey, students, can I erase it? Yes, sir. This is 3 pi by 2. This is 4 pi by 2. This is 5 pi by 2. This is 6 pi by 2. This is 7 pi by 2. This is 8 pi by 2. This is 9 pi by 2. This is 10 pi by 2. Okay. This is 11 pi by 2. And this is 12 pi by 2. Students, यानी हमने डिवाइड किया विद रिस्पेक्ट टू व्हाई एम आई गिविंग यू दिस अगेन फॉर फेज डिफरेंस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट एक आधा क्वेश्चन वापस इसी के ऊपर हाउ टू गेट इट हाउ टू रिमेंबर इट अगर तुम्हें टाइम इंटरवल चाहिए तो कैसे करोगे यानी अगर मैंने फेज पाई बाय 2 बोला उसका मतलब पार्टिकल किस तरफ है तो बोलना है प्लस है किस तरफ जाएगा पार्टिकल मीन पोजीशन पे जा रहा है समझ में आ रहा है मीन पे चला गया तो उसका फेज कितना होगा पाई हो जाएगा उसी टाइम पे वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है लैम्डा बाय 4 समझ में आ रहा है उसी टाइम पे पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टू एम्पलीट्यूड ये सारी चीजें फेज बताती है ये सारे सर्कुलर में लिख सकते हो या रेडियंस में भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं अभी अगर सपोज मैं टाइम इंटरवल ले लूं तो एट x is equal to 0 टाइम इंटरवल is 0 this is 1t by 4 this is 2t by 4 this is 3t by 4 this is 4t by 4 यानी for a phase of 2 pi for one complete wave यानी one complete cycle students one complete cycle तुमने शुरू किया पॉइंट ए से स्टूडेंट्स पॉइंट ए से शुरू किया वापस तुम पॉइंट ए पे आ गए तो व्हाट एग्जैक्टली द टोटल फेज कवर्ड 2 पाई व्हाट इज द टाइम इज पीरियोडिक ये ध्यान में रखना तुमने शुरू किया था तुमने स्टार्ट किया कहां से यहां से वापस एंड भी कहां पे किया वही किया तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 एग्रीड सो इसको कैसे लेते हैं 1t by 4 2t by 4 3t by 4 4t by 4 ये क्या होगा 5t by 4 ये होगा 6t by 4 ये होगा 7t by 4 ये होगा 8t by 4 ये होगा 5 80 by 90 by 4 ये होगा 10t by 4
ये होगा 11t/4, ये होगा 12t/4. 12t/4 will be equal to how much? 3t. Sorry, this will be 5t, isn't it? This is 1t. Okay, sorry, this is 8t/4, that is 2t. This is 3t. Agreed, students? ये देखो सबका टाइम इंटरवल आ गया मेरा. t/4, 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4, 6t/4, 7t/4, 8t/4 is 2t. 9t/4. अगर मैं करस्पॉन्डिंग प्लेस लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यानी तुम्हारा ये फेज हुआ, ये टाइम इंस्टेंट आया और ये प्लेस हुआ. ये क्या होगा, 0. This is 1 λ/4. This is 2 λ/4. This is 3 λ/4. This is 4 λ/4. This is 5 λ/4. This is 6 λ/4. This is 7 λ/4. This is 8 λ/4. This is 9 λ/4. This is 10 λ/4. This is 11 λ/4. And this is 12 λ/4. क्या ये क्लियर हुआ? अभी मैं किसी के बीच में फेज डिफरेंस, टाइम इंटरवल कुछ भी बता सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि नहीं? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ या ना? पार्टिकल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अब देखो पार्टिकल का मैं पोजीशन में यहाँ पे बताओ या यहाँ पे बताओ या यहाँ पे बताओ, तो ये पार्टिकल का पोजीशन है सारे. ये जो ब्लू डॉट्स है वो सारे पार्टिकल का पोजीशन है ना? क्योंकि पार्टिकल कैसे कर रहा है सर, पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ऊपर नीचे जा रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है. वेव किस तरफ जा रहा है सर, वेव या एनर्जी आगे की तरफ जा रही है. इसका फॉर्मूला क्या होगा, v is equal to f lambda. ये क्या है, ये x is equal to a sin omega t plus or minus phi I can consider. यानी I can consider x is equal to omega t plus phi. Velocity I can consider, acceleration I can consider. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो वो ऊपर आपने लिखा है वो एक बार समझा सकते हो? क्या ये यस सर. ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ये तो मैंने बताया था ना, ये तो हमने डिराइव किया है ना फ्रॉम डिफरेंशियल अच्छा, इक्वेशन. नहीं उसके नीचे. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा. ओके सर, वो वेलोसिटी है ना? हाँ, ये जो है ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और ये वेव का मोशन है. पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, वेव आगे की तरफ जा रहा है. एक सिंपल एग्जांपल, पानी स्टेशनरी है स्टूडेंट्स, पानी स्टेशनरी है. ध्यान से सुनना, एक पीस ऑफ वुड मैंने डाला हुआ है जो फ्लोट कर रहा है. स्टूडेंट्स अगर मैंने कहाँ पे दूरी पे इफ आई थ्रो अ स्टोन तो क्या होगा, रिपल्स फॉर्म होगा, है ना? गेट अ रिपल्स. लुक एट द पीस ऑफ वुड क्या होगा सुन, जैसे रिपल होगा the ripple will make the piece of wood to toss up and down. And a piece of wood will toss up and down, but will the piece of wood will move along with the wave? No. No sir. The particle is just going to oscillate about its mean position. The wave is going to go in the forward direction. क्या ये क्लियर होगा? अभी Sir, यहाँ is पे that both are oscillations only, right? yes, लेकिन ये wave का motion है. Wave is going along a straight path we consider, and that is due to the energy transferred by one particle to another. Agreed? Yes sir. तो हमारे SHM में हम ज्यादा करके पार्टिकल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं स्टूडेंट्स. देखो डिस्टिंग्विशिंग क्या है, ये हमारा पार्टिकल का मोशन है स्टूडेंट्स. मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ, अभी जब मैंने SHM एक्सप्लेन किया तो मैंने क्या बोला था, मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, एटम्स वाइब्रेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन. ये सारे ऑसिलेटरी मोशंस है. मैंने वेव के बारे में बताया नहीं, लेकिन यही चीज जब तुम वेव मोशन पे करोगे तो वेव का मोशन आगे की तरफ होगा. लेकिन हमें जरूरत है, क्यों? क्योंकि हम फेज डिफरेंस, टाइम इंटरवल और प्लेस फंक्शन के हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी सपोज इसी के अंदर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दूं स्टूडेंट्स. कैन यू टेल मी व्हाट इज द फेज ऑफ द पार्टिकल? हाफ द एम्पलीट्यूड. चलो पार्टिकल यहाँ पे है, उसका फेज निकाल सकते हो, आधा है. ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे है ना, उसका आधा है. यानी तुम्हें और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करूं मैं तो ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसे, व्हाट इज द फेज ऑफ द पार्टिकल एट t/2?
क्या करोगे? Anybody? विधान से सुनना. Everybody listen carefully, please. मैंने क्या पूछा? What did I ask you? I asked you students, what exactly the phase of the particle when it is at a by 2? यानी स्टूडेंट्स पार्टिकल यहां से शुरू हो गया था, अभी वो ऑसिलेट होते हुए ऊपर की तरफ गया है. मुझे यहाँ पे इसका फेस चाहिए, थीटा आई कैन कंसिडर. कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनना. तो तुम क्या बोलोगे सर? पार्टिकल, प्लीज पे अटेंशन, पार्टिकल शुरू हुआ मीन से, जा रहा है एक्सट्रीम की तरफ, स्टूडेंट्स, लेकिन वो प्लस ए की तरफ नहीं जा रहा है, वो ए बाई 2 की तरफ जा रहा है. लेकिन शुरुआत तो मीन से हुई है कि नहीं हुई? तो इसका इनिशियल फेज क्या होगा? सर इनिशियल फेज तो 0 होगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? पार्टिकल किस तरफ गया है? यहाँ पे आपने बोला पार्टिकल का पोजीशन क्या है? ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल बताता है कि नहीं बताता? ये किसके लिए है? पार्टिकल का है, उसका पोजीशन कितना है? a by 2. क्या ये क्लियर हुआ? ये 0 तक कहने से a sin theta, a will get cancelled. What is sin theta? So sin theta is equal to half. What is theta? Sin inverse of half. What is sin inverse of half? Pi by 6. स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Are you getting it, students? Sir, I didn't understand. Yes, sir. What does x represent? x क्या है? ये वेव फॉर्म किसका है? ये इक्वेशन किसका है? वेव का है या पार्टिकल का है? Sir, wave का है. वेव का है. तो फिर you pack up and you leave the lectures. Sorry, sir. Consistently, I went on yelling and shouting to you all, please, very, very clearly, this x is equal to a, and these are all particle, my dear. Particle, yes, sir. और इनिशियल फेज कहाँ से शुरू हुआ है? वेरी एक्जैक्टली इनिशियल फेज से स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर. इतना बड़ा डायग्राम दिया, मैग्नीफाई करके दिया. चलो किसको यहाँ पे समझ में नहीं आता तो यहाँ पे समझ में आता है. इसी को मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के लिए बोला, तो ये डायग्राम आता है. तो इनिशियल फेज क्या है इसका? व्हाट इज इनिशियल फेज? 0. Okay, yes, sir. I understood, sir, now. तो तुम्हें अगर मैं x को a by 2 लेता हूँ, कैंसिल तो sin थीटा इज हाफ. सो व्हाट इज थीटा? पाई बाय sin इनवर्स ऑफ हाफ. दैट इज हाउ मच? पाई बाय 6. Yes, sir. अगर इसी को मुझे यहाँ पे दिखाना स्टूडेंट्स, देखो ना स्टूडेंट्स, ये 45 डिग्रीज होगा ना, यानी ये 30 डिग्रीज पे है. समझ में आ रहा है? पार्टिकल यहाँ पे है. स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं फेज? दिस इज यानी ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो फेज निकाल सकते हो, कंसीडरिंग द इनिशियल पोजीशन. स्टूडेंट्स तो अभी पता चला, अगर पार्टिकल प्लस a by 2 होगा तो व्हाट एग्जैक्टली विल कंसीडर? इट्स फेज विल बी हाउ मच? pi by 6. Are you getting this, students? Yes, sir. All the students, please, all the students who are in the lectures, all of them, are you getting it, students? This is how we can consider. यानी ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, फेज का मतलब क्या है? It shows the instantaneous position of the particle. अगर सपोज तुम्हें फेज मिल गया स्टूडेंट्स, चलो मुझे फेज मिल गया, कैन यू फाइंड आउट द टाइम इंटरवल? तो तुरंत तुम बोलोगे हाँ सर, क्यों नहीं निकाल सकते हो? ध्यान से देखना, पार्टिकल को a by 2 में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो तुम क्या बोलोगे? सर इनिशियल फेज 0 है क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई. अभी फेज कितना होगा? पाई बाय 6. आपने पूछा टाइम इंटरवल, फॉर्मूला क्या है? डेल्टा फी अपॉन 2 पाई डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी. चेंज इन फेज क्या होगा? पाई बाय 6 माइनस 0 तो पाई बाय 6 होगा. 2 पाई तो नीचे है. आपने पूछा डेल्टा टी, तो क्या आंसर होगा? पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल. कैन आई से डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बाय 12?
आया आंसर? व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम इंटरवल? t/12। अभी पता चला ये फॉर्मूलाज को कैसे एप्लीकेशन में डालते हैं? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. प्लीज ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इनटू द ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, अभी sir. अगर Yes, सपोज मैंने sir. स्टूडेंट्स, अभी अगर मैंने पूछा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुना, अगर मैंने पूछा स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा मीन पोजीशन है, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये तुम्हारा नेगेटिव एक्सट्रीम है। स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, पार्टिकल अगर मीन से शुरू करता है और पार्टिकल +a/2 तक पहुंचता है, तो यहां से यहां पे कितना टाइम लेगा पार्टिकल? कोई बता सकता है? पार्टिकल को तो मीन से शुरू कर रहे हो, अभी वो हाफ द एम्पलीट्यूड गया है, कितना टाइम लेगा उसको वहां तक पहुंचने के लिए? So t/12. t/12 अभी तो निकाला रुखसार, अब भी निकाला, देखो ना, अब भी निकाला मैंने आंसर। ऐसे क्या करते हो रुखसार? ये देखो ना, पार्टिकल मीन से शुरू हो रहा था, a/2 गया, तो देखो ना, ये डिफरेंस इन टाइम का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? व्हाट इज डिफरेंस इन टाइम? व्हाट इज डिफरेंस इन टाइम? फाइनल माइनस द इनिशियल। इनिशियल क्या है? मीन से शुरू हो रहा है, तो t तो यहाँ पे 0 है, तो ये कितना होगा? t/12 होगा कि नहीं होगा? स्टूडेंट समझ में आ रहा है? t/12 सेकंड होगा कि नहीं होगा? एग्री? Yes, sir. ये देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ? t/12 आया कि नहीं? डेल्टा t t/12 आया कि नहीं आया था? बस वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा। अभी दूसरा क्वेश्चन, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। नाउ द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम मिडवे टू पॉजिटिव एक्सट्रीम। ध्यान से सुनना, मिडवे टू पॉजिटिव एक्सट्रीम, midway to positive extreme, what is the time taken to move from midway to positive extreme? So t/12 only. देखा, बिना सोचे समझे। Students, what is the total time taken for the particle to move from mean to positive extreme? Mean to positive extreme, what is the total time taken? What is the total time taken over here? t/4 है कि नहीं है? हाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ से यहाँ पे t/4, यहाँ से यहाँ पे t/2, तो यहाँ से यहाँ पे कितना होगा? t/4 minus t/. आया t/6? क्या ये रॉकेट साइंस था? ये रॉकेट साइंस था? रुखसार इसके लिए t/6 होगा। सामने सामने सब कुछ बता रहा हूं मैं, यानी कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दे तो भी आंसर आता है, कोई स्टूडेंट्स फॉर्मूला ले तो भी आंसर आता है, कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देखे तो आंसर मिल सकता है। स्टूडेंट्स एक ही चीज को 3 अलग तरीके से बता रहा हूँ, फिर भी अगर तुम कनेक्ट नहीं कर सको, दैट्स वेरी बैड। और यही चीजें तुम्हें बहुत टफ गिरेगी अगर तुम उसको कंसिस्टेंसी में नहीं रखोगे तो। स्टूडेंट्स क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? एवरीबॉडी? हाँ स्टूडेंट्स, so if I say time taken for the particle to move from mean to extreme is t/4, what's the time taken for the particle to move from mean to midway? t/12, midway to positive extreme t/6। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, चलो t/12 और t/6 कौन सा ग्रेटर वैल्यू है, कौन सा स्मॉलर वैल्यू So t/6 is greater. है ना? ये ज्यादा है, यानी कोई भी स्टूडेंट अगर लॉजिकली भी सोचे, कोई भी स्टूडेंट लॉजिकली भी सोचे, तो अगर वो बोलेगा कि सर अगर पार्टिकल कभी भी मीन से पास होगा, ऑसिलेशन के टाइम पे वो मीन से जब भी पास होगा, तो मीन पे उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता है, तो उसका स्पीड कम होते जाता है। यानी स्टूडेंट्स, पार्टिकल जब मीन टू मिडवे जाता होगा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो कम टाइम में यहाँ पे पहुंचेगा। लेकिन जैसे और आगे बढ़ता रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ते रहता है,
समझ में आ रहा है? तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, तो ज्यादा टाइम लेगा। अभी कनेक्ट हुआ? भले वो a/2 पे है, हेलो, भले वो मिड पॉइंट पे है। इनिशियली मैंने आस्क्ड व्हाट इज द टाइम टेकन, तो जश ने बोला था t/8 की t/4, तो आधा बोल दिया था उसने, लेकिन वो गलत था। अगर मैं t/8 लेता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मीन पे उसकी ज्यादा है। जैसे जैसे पार्टिकल एक्सट्रीम पे आता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो रुकेगा, वापस इस तरफ आता है। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी यहाँ पे यहाँ के लिए इट टेक्स लेस टाइम टू रीच, और यहाँ से यहाँ पे इट टेक्स सम मोर टाइम टू रीच। Is this clear, students? Yes, sir. So please, whenever you solve multiple choice questions, do keep in mind the time taken for the particle to move from mean to midway. Mean to midway is always t/12. Midway to extreme is t/6. t/12 plus t/6 is t/4. अगर तुम याद रखोगे तो वैसे भी याद सकते हैं, तो मीन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से कम टाइम में वो हाफ द एम्पलीट्यूड पहुंच जाता है, t/12 में पहुंच जाएगा। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस उसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी, तो t/6 टाइम लगता है उसको। लेकिन टोटल टाइम फॉर द जर्नी फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम t/4। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ हाउ टू यूज दिस इक्वेशन टू गेट टाइम एंड टू गेट द फेज? अभी देखो, मुझे टाइम चाहिए, ओके, थीटा आया तुम्हें, थीटा कितना मिला, π/6 चाहिए, ओके, थीटा π/6 मिला। क्या मैं इसको सॉल्व करूँ आगे? इसको मैं सॉल्व करूँ? What is theta omega t is equal to what? π/6, ये आंसर मिला था ना मुझे a/2 पे, इसका फेज। मुझे टाइम चाहिए था, तो कहने से t/6 ओमेगा, 6 टाइम्स ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? सॉरी, ये π/6 है, ओके। व्हाट इज ओमेगा? 2π/t, पाई विल गेट कैंसिल, आया t/12। हाँ स्टूडेंट्स, अगर मुझे थीटा मिल गया π/6, मुझे फेज मिल गया π/6 रेडियन या π/6 सर्कुलर, तो क्या मुझे टाइम नहीं मिलेगा? अभी सपोज मैंने बोल दिया द पीरियोडिक टाइम फॉर दिस इज 10 seconds, time taken for one oscillation is 10 seconds, so at what time the particle will be 10/12? This is how MCQs are. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. अभी मैं इसको इरेज कर दूं पूरा। No, sir. No, sir.
So can I erase it? रुखसार समझ में आ रहा है? रुखसार, ऋषि, रुखसार. Yes, sir. Okay, Om. Om, are you there? Om Shinde. Okay. Kunj, what about you, Kunj? कुंज समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Hitanshu, Harsh Pandey, Josh, Yes, sir. Sumit. These are the ones who all the time somewhat they reply. The rest of them they don't reply. So I don't know. I'm not asking them what else. इनसे अगर कुछ भी अनकंफर्ट लगता तो तुरंत पूछो. Okay, Deepak is also able to get it. Good. क्या मैं erase कर सकता हूँ अभी मैं इसको? Can I erase students? So can I erase it? Okay.
Okay, students. Now the formula for displacement had given to you x is equal to a sin omega t plus phi students. ये phi क्या है? Initial phase. और इसको हम बोल सकते हैं epoch. Okay, or we consider phase constant. ये हमेशा constant रहता है ना? कैसे constant रहता है? फेज का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन फेज का क्या फॉर्मूला होगा? हाँ स्टूडेंट्स, 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा होगा कि नहीं? हाँ स्टूडेंट्स, तो इसके जगह पे सपोज अगर मैं डेल्टा फिर लिखूंगा चेंज इन तो कहने से 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा आ सकता है. फेज कांस्टेंट यानी क्या होगा? वो 2 पाई बाय लैम्डा इज कांस्टेंट. एंड स्टूडेंट्स ये फेज को ध्यान से सुनना, फेज को हम kx भी लिख सकते हैं. ये ध्यान रखना, फेज को हम कैसे लिख सकते हैं? kx. k क्या हुआ? k की वैल्यू क्या हुई? 2 पाई अपॉन लैम्डा. क्या ये कांस्टेंट है? यस. इसको मैं क्या नाम दूंगा? प्रोपोगेशन कांस्टेंट. यानी स्टूडेंट्स जब भी तुम एक्सप्रेशन देखोगे तो ओमेगा टी प्लस फी के अंदर तुम देखोगे तो फी का क्या नाम हो सकता है? इनिशियल फेज. दूसरा नाम क्या हो सकता है? एपोक. क्या उसको मैं फेज कांस्टेंट बोल सकता हूँ? तो बोले सर फेज कांस्टेंट है, लेकिन डेल्टा फीस 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा. 2 पाई बाय लैम्डा इज अ कांस्टेंट, तभी जाके तुम उसको फेज कांस्टेंट बता सकते हो. 2 पाई बाय लैम्डा क्या है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट. ओमेगा टी प्लस और फी क्या होगा? टोटल क्या है? ये तुम्हारा टोटल बन जाता है फेज. ये सिर्फ इनिशियल फेज है, ये पूरा फेज है. ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है पोजीशन ऑफ द पार्ट, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. ये पूरा मिला के क्या दिखाता है? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल. ये ध्यान में रखना. क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ स्टूडेंट्स, this is much clear to all of you all. And this expression I picked up from the previous one. Now listen carefully, students. Abhi dhyan se sunna, students, everyone. Okay. What you do it is, you try to find out phase of the particle for different positions, or you can find out at different positions we consider. Are you getting it? Let us take the मैं phase देता हूँ, तुम position find out करना. यानी ये एक दफे ट्राई करना घर पे बैठ कर. ये तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए स्टूडेंट्स. अगर मैंने बोला इनिशियल फेज 0 लूं मैं, getting it? फिर मैं लूं 30 डिग्रीज. Okay, 60 degrees we consider, 30 degrees, I getting it? 60 degrees, ये 45 होगा. I getting it? 30 degrees will be somewhere over here. I'll consider 30 degrees. ये 45 होगा. ये 60 degree. So 30, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30, 3 11s are 33, 3 12s are 36. क्या तुम्हें फेस, यानी ये 360 का मतलब क्या हुआ? 2 पाई. अगर सपोज मैंने पूछा फेस तुम्हें दिया है, इनिशियल फेज 0 पकड़ोगे, कैन यू फाइंड आउट एक्स का वैल्यू फ्रॉम यहाँ से? इनिशियल फेज 0 है तुम्हारा, कैन यू फाइंड आउट एक्स का पोजीशन निकाल सकोगे अलग अलग एंगल्स के लिए स्टूडेंट्स? हाँ हाँ या ना? यानी ये तुम्हारा काम होना चाहिए स्टूडेंट्स. तुम एक दफे ये पूरा ट्राई करो, फिर देखो, फिर तुम एमसीक्यूज करना शुरू करो, तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन टीज होना शुरू हो जाएगा. तुरंत तुम कंसीडर कर सकोगे, आराम से तुम कर सकोगे, क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने अभी एक्स कर दिया है. तो ये तो सिर्फ मैंने एक्स कर दिया है, इससे मैं वी निकालूंगा तो क्या करोगे? तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. लेकिन ये तो कांस्टेंट रहने वाली है, पूरा फेस तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ वो ये बाहर आ जाएगा. तो वहां पे भी तो तुम्हें वी तो भी निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो आई कैन आस्क यू फॉर वी आल्सो, आई कैन आस्क यू फॉर एक्सेलरेशन आल्सो. तो फॉर वंस यू शुड ट्राई इट आउट इन दिस केस. लेकिन जब तुम लिखोगे तो डोंट राइट ऑन 30 डिग्रीज. इसको देखो पाई बाय 6. आई गेट इट. दिस यू राइट ऑन पाई बाय 3. दिस इज राइट ऑन पाई बाय 2. इसको लिखो 2 पाई बाय 3. Is that clear? So like that you go ahead with it.
you can find out the corresponding position of the particle. क्या ये clear हुआ students? एक चीज clear हुई सबको? So can you do one as an example? अरे, now suppose if I happen to go for 120 degrees. So what exactly? Take this is 120, initial phase is 0. This is for 120. What is the displacement? X is equal to A sine 2 pi by 3. What is sine of 2 pi by 3, students? What is sine of 120? Students? One by two. So fair. Are you getting it in this case? Am I getting it in this case? Yes. So I'm getting 1 by 2. X is equal to A by 2. Are you getting, students? I can get the displacement of the particle along the vertical axis. क्या ये clear हुआ, students? अगर मैंने बोला sine of 270. So what is sine of 270? Is it plus 1 or minus 1? Plus 1 or minus 1? बताओ. Sine of 270 यानी कितना होगा? 3 pi by 2. आया ना? 270 का मतलब कितना हुआ? तो स्टूडेंट्स So -1. माइनस 1 यानी ये क्या होगा? माइनस है, तो कहने से मेरा इस तरफ आएगा माइनस. अरे हाँ सर, एम्पलीट्यूड नेगेटिव आ जाएगा, यानी x मिल जाएगा ना, मैंने -1 मिल जाएगा तुम्हें, माइनस है. आई गेटिंग इट? क्योंकि ये तुम्हारा क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, मुझे x चाहिए, ये a होगा sin of 3 pi by 2. sin of 3 pi by 2 क्या होगा? -1. तो क्या होगा? माइनस है. Are you getting it? Am I getting the position of the particle along the y? Yes, anywhere I can get it. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is this clear? Considering the initial position starting from mean position. लेकिन अगर सपोज मैं, ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना, इनिशियल फेज वो 0, बट ध्यान से सुनना, अभी ये बॉब है, इसको ऑसिलेट करना है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना. अगर मैं मीन से शुरू करता हूं तो मेरा इनिशियल फेज 0 आ जाएगा, लेकिन यस आयुष, यू आर रेजिंग हैंड फॉर व्हाट? आयुष, यू रेज हैंड व्हाट? Okay, very sorry, Ayushi. Okay, it's by mistake. Very sorry, Ayushi. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर मैं ये पार्टिकल को ऑसिलेट करता हूँ मीन पोजीशन पे, मेरा इनिशियल फेज 0 होगा. अभी ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम्हें कोई एमसीक्यू दूं, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, particle is displaced initially at pi by 6. ध्यान से सुनना, pi by 6, और फिर वहां से मैं उसको ऑसिलेट करता हूं, तो इनिशियल फेज क्या होगा? pi by 6. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? So I didn't understand. What did you understand? So where are you starting? Listen carefully. First of all, listen carefully. Can you make a particle to oscillate from anywhere? I Yes, told you sir. very clearly, I can make it from anywhere. कोई बंदा मीन से शुरू करेगा, कोई एक्सट्रीम से शुरू करेगा, पॉजिटिव कोई नेगेटिव. मुझे अभी पाई बाय 3 से ऑसिलेट करना है तो करना, मैं यहाँ से लेता हूँ, रिलीज कर रहा हूँ. कोई बोलेगा मेरे को पाई बाय 6 से करना है, पाई बाय 3 से करना है, ये पाई बाय 6 हुआ, पाई बाय 3 हुआ. यानी आई कैन चेंज माय मोड ऑफ ऑसिलेशन. जरूरी नहीं है कि मुझे मीन से करना है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से करना है. प्रॉब्लम्स कैन चेंज. तो मेरा इनिशियल फेज चेंज होगा कि नहीं होगा? यानी ऑलरेडी मैं पार्टिकल को, अगर मैं पार्टिकल को सपोज अगर मैं पाई बाय 6 पे लेता हूँ, यानी 30 डिग्रीज पे ले लिया, फिर यहाँ से मैंने बॉब को रिलीज कर दिया, तो बॉब ऑसिलेट हो रहा है. आया ना? एग्रीड? ये मेरा इनिशियल फेज होगा. Yes. ये कौन सा देगा? एग्रीड? Yes, sir. Now suppose if in case if I happen to ask you what exactly the time taken for a particle to have
a position of half the amplitude. अगर मैंने x को a by 2 लिया तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये a and a will get cancelled. Sin of omega t plus pi by 6, sin of half आ गया, I get sin of 30 degrees भी आ गया, तो omega t will be equal to 0, time taken will be equal to 0, particle back to mean position, उसी जगह पे आया. Students, looking at the positions a by 2 low, root 3 by 2 low, a by 4 low, any position you can get your angle accordingly. You can get an angle accordingly by cancelling a, और ये तुम्हारा पूरा एक angle बन जाएगा. Sin inverse लेना है. So you can find out, students, you can find out at what time the particle reaches at that instant. So using these equations, I can get x if I know this. I can find out x if I know this and this both. I can find out omega t if I know x and phi. I can find out phi if I know omega t and x. Anyhow, we can get an answer accordingly. क्या ये clear हुआ? For the displacement x is equal to sin omega t, how do we solve these expressions? Is it clear, students? Now suppose अगर मैं यहाँ पर root 3 by 2 लेता हूँ, students root 3 by 2 लेता हूँ, ये cancel हो गया. मुझे बताओ sin of omega t plus pi by 6 is root 3 by t. Sin of which angle is pi by root 3 by 2, students? Students, sin of which angle is root 3 by 2? 60 degrees. आया ना? Students? Yes, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? क्या बताऊंगा मैं? Pi by 3 is equal to omega t plus pi by 6. So what is omega t? Pi by 3 minus pi by 6. This is how we can find out the time interval also. At what time the particle is going to reach? इसका मैंने 6 LCM ले लिया. 6 we consider that is पाया जाएगा. So can I say t will be equal to what? Pi by 6. Omega नीचे आ जाएगा. 2 pi by t. Pi by गया cancel. t by 12. यानी अगर मैंने पार्टिकल को 30 डिग्री से शुरू किया स्टूडेंट्स, 30 डिग्री से पार्टिकल को मैंने 30 डिग्री से शुरू किया. Everybody listen carefully. And now if I say the particle has covered a displacement root 3 times by 2 times the amplitude. Agreed? So it has to reach over there. So in how much time it's going to reach root 3 by 2 8 times the amplitude? t by 12. This is how you have to just solve it and get the answer. Is this clear, students? Yes, sir. Yes, sir. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. अगर सपोज मैंने ये तुम्हें x पूछा है, आई कैन टेक दिस आल्सो एज एन एंगल. अगर मैंने यहाँ पे कोई एंगल ले लिया, पाई बाई 3 ले लिया है, पाई बाई 2, तो साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आएगा. साइन a cos b प्लस cos a sin b भी कंसीडर. यानी ये तुम्हें साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आना चाहिए, साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि इसी को मैं वेलोसिटी में कन्वर्ट करूंगा तो cos ऑफ a प्लस माइनस b का भी फॉर्मूला आना जरूरी है. So this is more important, how to crack the entire expression. Okay, students. Next lecture will be continuing from here onwards. We'll go to velocity and go to acceleration. Is this clear, students? Yes, sir. Okay. So, Thank you, sir. okay. Bye, sir. Bye-bye.